मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग-अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज़्यादा तेज चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज़्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसमें दो तीन फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, और उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। আসলে জিনিসটা এত বাড়তো না যদি নরেন্দ্র মোদীরা সঠিক টাইমে ব্যবস্থা নিত। শুধু বাংলার ইলেকশনটা লুট করতে গিয়ে আর বাংলা দখল করতে গিয়ে সারা ভারতবর্ষকে আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একটা সর্বনাশা পথে নিয়ে চলে গেছে, যেখানে দেশে ওষুধ নেই, ইঞ্জেকশন নেই, অক্সিজেন নেই। আজও তিনি মন কা বাত করে চলেছেন। ওনার মনের বাত কে শুনতে চায়? এখন মন কা বাত কেউ শুনবে না। কোভিডের বাত করুন এবং ইঞ্জেকশন দিন, অক্সিজেন দিন, মেডিসিন দিন। যা মেডিসিন আসছে সেটা খুব অল্প, তাতে কিচ্ছু হয় না। অক্সিজেন সাপ্লাই এমনকি আপনাদের আমি আগেও বলেছি, আমি কিন্তু ভার্চুয়ালটা স্টার্ট করে দিয়েছি, যে অক্সিজেন সাপ্লাই আমাদের বাংলায় যারা দিতেন তাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। তা আমরা অক্সিজেনটা কোথা থেকে পাবো? আমি ধরুন নিজে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু লোককে চিনি বলে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেনটা হেলথ অক্সিজেনে ট্রান্সফার করে দিয়েছি। ফলে সেখানে কিছুটা বেশি আমরা পাচ্ছি, নো ডাউট। এমনি সবাইকে তো হসপিটালে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যার কোনো কোমরবিডিটিস আছে, যার শ্বাসকষ্ট আছে, বাদবাকিরাও কোভিড হলে চিন্তার কোনো কারণ নেই, হোম আইসোলেশনে ভালো থাকবেন, একটু ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবেন, একটু বিশ্রাম নেবেন, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন। সবাইকে একটা কোভিড একটা কেস হওয়া মানে 1000 জনকে স্পর্শ করা। সুতরাং কেসের সংখ্যা বাড়া নিয়ে চিন্তা করবেন না, এটা টাচ করলেই হয়। আর বাংলায় 2 লক্ষ পুলিশ রেখে দিয়েছে বাইরে থেকে এনে। উত্তরপ্রদেশের, রাজস্থানের, গুজরাটের, দিল্লির সিএপিএফ যত ফোর্স আছে ওদের থেকে একটু দূরে থাকবেন। ওরাই জেলায় জেলায় ঘুরে, বেচারা ওরাও জানে না আরটিপিসিআর হয়নি, কে কোভিড কে কোভিড নয়।
এটা বেশি রটেছে, বেশি ছড়িয়েছে। আর দুই হচ্ছে প্রায় লক্ষাধিক লোক বিজেপির ক্যাডার বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে বাংলায় ছিল, 1 মাস ধরে এগুলো ছড়িয়েছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নিয়ে পালাবে, যখন পালাবে তখন তো আমাদের বাংলায় ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। আজকে সারা দেশ একটা সংকটের মধ্যে পড়েছে এবং সারা দেশের, আচ্ছা জানলার দরজাগুলো আমি খুলে দিতে বলছি, দরজাগুলো খুলে দিন, কোনো জীবাণু থাকলে বেরিয়ে যায়। এতগুলো লোক এক জায়গায় থাকলে দরজা খুলে দিন, ওপরের দরজাও খুলে দিন, নিচের দরজাও খুলে দিন। দরজা খুলে দিলে কিচ্ছু হবে না, সব দরজা খুলে দিন। স্বরূপ এদিকে ওদিকে দরজা খুলে দাও, আমাদের এদিকেও সব দরজা খুলে দাও। সবসময় দরজা টরজাগুলো খুলে রাখবেন যাতে হাওয়াটা পাস করতে পারে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং তাই আপনাদের সকলকে বিশেষ করে আমার বলার যে কোভিড বিধি মেনটেন করেও ইলেকশন হচ্ছে, ইলেকশনটা আমাদের করতে হচ্ছে, আমরা বাধ্য হচ্ছি। আমি তো বারবার থেকে 3য় দফা থেকে বলছি, প্রথমেই বলেছিলাম যে 8ম দফা করার প্রয়োজন নেই, শুনলো না ইলেকশন কমিশন। তারপরে বলেছি যখন 3য় দফায় কোভিড দেখা দিল যে আপনারা একসাথে ফেসগুলো করে নিন, ইভেন প্রচার যদি না করতে দেন তাতেও আমাদের আপত্তি নেই, মানুষ বাঁচুক, সেটাও ইলেকশন কমিশন শোনেনি। এরা প্ল্যান করে 8 ফেজ করেছে, কোন ফেজে কি করে রিগ করবে, এক একটা ফেজে এক এক প্ল্যান। আগের ফেজে কি করেছি জানেন আপনাদের? আমি জানাই, আমি যে ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকেও যেগুলো আমার কাছে এসছে, এই যে কাজল সিনহার কথা বলছিলাম, ও তো জিতবে ছেড়ে দিন, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, এগুলো পুরো ইলেকশন হচ্ছিল, কিন্তু ইলেকশন কমিশন সিএপিএফ পাঠিয়ে পুরো বিজেপিকে মদত দিয়েছে। আর বিজেপির লিডারগুলো এক একজনের 50টা করে সিএপিএফ দিয়ে দিয়েছে। গুন্ডা, ক্রিমিনাল, আসানসোলে যারা ক্রিমিনাল, কলকাতায় যারা ক্রিমিনাল, সারা জেলায় যারা ক্রিমিনাল, তাদের সাথে 10 জন 20 জন করে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে দিয়েছে তাদের। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकले। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को
ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ